ওকে, সো আমাকে শুনতে পাচ্ছ তো? এম আই অডিবল? Yes, sir. ওকে, কেউ কি এসছে জয়েন করবে বলে? ওকে, নাও আজকে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে পিকচারটা, যে কিভাবে सेंडर থেকে डेटाটা रिसीवरे जाए। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे एक डिवाइस जब सेंड करता है कोई भी डेटा कोई रिसीवर के पास, तो कैसे वो डेटा उसके पास चला जाता है। कि देखो, लेफ्ट साइड में जो है वो है डिवाइस ए, বাঁদিকে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ডিভাইস এ, ডান দিকে রাইট সাইডে আছে ডিভাইস বি, মাঝখানে কি আছে, बीच में क्या है, दो इंटरमीडिएट नोड। दो इंटरमीडिएट नोड मतलब हो सकता है ये लेयर 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 3 कोई डिवाइस, मतलब राउटर हो सकता है कोई भी स्विच, जो भी चाहे। क्या हुआ, জাস্ট সি, তোমাদের এদিকে যখন ডিভাইস এ যখন ডেটাটা ট্রান্সমিট করছে, তখন আমরা কি দেখছি, উই সি দ্যাট directly as if it comes, what we think that directly the data goes to it from this to this, from this to this। उसके बीच में क्या हो रहा है हम लोगों को पता नहीं। हम लोग क्या समझते हैं कि भाई मैंने तो डेटा भेज दिया, तो डेटा सीधा चला जा रहा है ए के थ्रू से बी के पास। लेकिन बीच में क्या हो रहा है, মাঝখানে কি ঘটছে, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। ইফ ইউ সি দ্য লেফট সাইড, মানে তুমি যদি ডান দিক বাঁ দিকটা দেখো লেফট সাইডে, তার মানে এখান থেকে ডেটাটা বেরোচ্ছে, আমরা যখন সেন্ড করছি তখন সেটা বেরোচ্ছে কোথায় আসছে, ইট কামস টু অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার। ফ্রম অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার ইট কামস টু প্রেজেন্টেশন লেয়ার, from presentation layer it comes to session layer, then from session to net transport layer, from here to network, data link, and physical layer. Physical layer means, always remember, physical, the term is, it means which you can touch. So physical layer means the connector, the cable, everything is physical layer device. So automatically, and LAN card obviously, network interface card. Sometimes some people may say that LAN card belongs to data link layer. Not that. LAN card belongs to physical layer. Why? You may ask me the question, sir, why? Because LAN card deals with the raw signals. Because LAN card directly connected with the cable. The raw signal comes through the cable connector to the cable. সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইট বিলংস টু ফিজিক্যাল লেয়ার। কেন তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো, স্যার আপনি বললেন এটা ফিজিক্যাল লেয়ারে বিলং করে। তার কারণ ফিজিক্যাল বলতে আমরা কি বুঝি, হুইচ উই ক্যান টাচ, যাকে আমরা, যার একটা অস্তিত্ব আছে, ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স আছে, তাকে আমরা ছুতে পারি, উই ক্যান টাচ, দ্যাট ইজ কল্ড ফিজিক্যাল। তো এখানে ফিজিক্যাল কি হচ্ছে, কানেক্টর, ইউ হ্যাভ দ্য কানেক্টর, ইউ হ্যাভ দ্য ল্যান্ড কার্ড, অটোমেটিক্যালি ইউ কানেক্ট দ্য জ্যাক উইথ দ্য কেবল। সো অটোমেটিক্যালি কি হচ্ছে, আমার যে র বিটসটা নর্মাল ডিজিটাল সিগন্যাল, ইট কামস টু the LAN card from the connector to the cable. So that is why, as the LAN card, it accepts the raw bits, or it delivers the raw bits, raw signals. So that is why the LAN card belongs to the physical layer. আমি কি বোঝাতে পেরেছি? Am I clear or not? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So that is why, if you are asked at the time of interview or viva, whatever, that why are you saying that land card belongs to physical layer, then this explanation you should provide. Now what is happening, the data comes to physical layer, means LAN card. From LAN card through the cable it goes to the another device where same jack is there, so automatically that is physical layer. From this it goes to data link, network, if the router is there, then it is a network layer, layer 3 device. So network layer, physical layer, from this it goes to this way. If instead of router there is switch, no problem, then up to data link layer, from data link layer to data link layer, physical layer, from here to here. So automatically what we think that, one moment, just one moment, give me a, I have to take medicine, I just forgot it to take.
Okay, so that is the way through which the data is communicated from sender to receiver. So first you tell me whether the picture is clear or not. If any doubt, you can tell me. अजीत और सजीद, अगर कोई प्रॉब्लम होगा इस पिक्चर को देखकर, पहले इस पिक्चर को ठीक तरह से देखो, समझ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू just digest the picture. Then you say if you have any problem. No, sir. Okay, fine. So I am coming to the next. That is very important. Actually, yesterday I told you that that is one important topic we have to discuss today. That is very important. That is why before going to that discussion, I just show you this picture. Now I am coming to the next. That is very vital. That is the encapsulation. What is encapsulation? Yesterday I discussed, আমি বলেছিলাম যে এনক্যাপসুলেশন জিনিসটা কি। এনক্যাপসুলেট কথাটা, ক্যাপসুল মানে কি, আমরা ক্যাপসুল খাই তো, উই টেক মেডিসিন ইন টার্মস অফ ক্যাপসুল অলসো, আমরা ক্যাপসুল খাই। कैप्सूलটা देखते की रकम है? कैप्सूल देखने में कैसा होता है? ये जो एक रहता है ओवल शेप का, ये ओवल शेप, ये ऐसा होता है, उसके बीच में थोड़ा डस्ट करके जो मेडिसिन रहता है उसके बीच में रहता है। मतलब उस जो बीच में जो डस्ट जो मेडिसिन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर एक कवर, ये दोनों कवर रहता है, मतलब कैप्सूल। यू आर रैपिंग, तुम एक चीज को रैप करके दे रहे हो, जैसे कि तुम लोग गिफ्ट देते हो, তোমরা যখন গিফট কাউকে দাও তোমরা কি করো, মুড়ে দাও, মানে জাস্ট প্রোটেকশনের জন্য। সো সেম থিং ইজ হ্যাপনিং হিয়ার। এনক্যাপসুলেট মিন্স when the data is transferred from the source to destination, then what is happening? There is every possibility to data rapturing. So to protect the data intact, to keep the data intact, each and every layer puts a wrapper in terms of logical sense, that is called the header file, and it wraps the data. This is the original data. Application layer wraps, then presentation layer wraps, then session layer wraps. So original data is this, but wrapper is this, it protects. মানে ব্যাপারটা কি হচ্ছে, যখন একটা করে লেয়ারে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে, এক প্রত্যেকটা লেয়ার ও কি করছে, এইটা যদি আমার ডেটা হয় তাহলে একে র্যাপ করছে, তাকে আবার র্যাপ করছে, তাকে আবার র্যাপ করছে, এইভাবে ঢাকতে ঢাকতে যাচ্ছে। সো র্যাপিং, ইন টার্মস অফ র্যাপিং, ইউ মে আস্ক মি, স্যার র্যাপিং ইজ ইট পেপার র্যাপিং? নো, that is not a paper wrapping. There is no question of having any paper. The wrapping is a logical wrapping. How? Each and every layer puts a header in front of the data. Just see, here is the layer 7 data, means application layer data. When it comes here, then it puts the header 6, means presentation layer header. After that, the entire data wraps into this. Actually, in this way, it is wrapping. Now it comes to physical layer, that is the logical raw bits, as I told you few minutes ago. This raw bits from the cable, it goes to its LAN card, the receiver's LAN card. In terms of raw bits, it goes to the layer 3. Then what is happening? Sorry, layer 3, I mean to say layer 2. What is happening? Here is a header and trailer. I actually told you in the last class that data link layer has two specialties. One, data link layer is the only layer which has two sublayers, and parallelly each and every layer puts the header in front of the data. প্রত্যেকটা লেয়ার কি করে, তার ডেটাটা যেই আসছে তার আগে একটা হেডারকে বসিয়ে দেয়, এরকম করে হেডারকে বসিয়ে দিচ্ছে, জাস্ট টু প্রুভ দেয়ার অথেন্টিকেশন। ডেটা লিঙ্ক লেয়ার, ইন অ্যাডিশন টু হেডার, ইট পুটস আ ট্রেলার, টোটাল ডেটাটার পেছন দিকে শেষের দিকে একটা ট্রেলার যোগ করে, যেটাকে আমরা বলে থাকি কালকে যেটা বললাম FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस। सो पहले रहता है ट्रेलर, लास्ट में रहता है FCS और फ्रेम चेक सीक्वेंस, बीच में रहता है डेटा। सो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ द डेटा लिंक लेयर। सो डेटा लिंक लेयर, इफ यू आर आस्क्ड व्हाट आर द स्पेशलिटीज, द फर्स्ट वन, डेटा लिंक लेयर is the only layer which has two sublayers.
LLC MAC. Another speciality, each and every layer puts a header in front of the data to prove its authenticity. But the data link layer, in addition to the header, it also puts the trailer in at the end of the data for error notification, error detection purpose. So in front the trailer header, last trailer, बीच में data. So entire data goes to this its data link layer. What is happening? अगर मैंने कोई रैप करके कोई गिफ्ट अगर तुमको देंगे, साजिद या अजीत तुमको देंगे, तुम लोग क्या करोगे? पहले वो रैप को अनरैप करोगे, उसके बाद तुमको गिफ्ट मिलेगा. समझ लो एक पेन, एक कॉस्टली पेन हम तुमको दे रहा है. तो पेन किसके अंदर रहता है? एक वो पर जो सॉकेट होता है उसके अंदर रहता है. वो एक बॉक्स के अंदर, बॉक्स को एक रैप करके दे रहा हूं. उसके बाद एक रैपर, वो जो क्या कहते हैं, फीते के की बोले तुमरा, फीते, व्हाट यू से, रिबन, राइट, रिबन देते हैं. तो पहले तो जब तू कोई गिफ्ट मैंने तुमको दे दिया तो तुम लोग क्या करोगे? पहले रिबन को खोलोगे, उसके बाद रैपर को खोलोगे, उसके बाद बॉक्स को ओपन करोगे, उसके बाद सॉकेट से पेन ओरिजिनल निकालोगे. सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. मैंने जब तुमको दे रहा हूं तो पहले क्या, उस पेन को सॉकेट के अंदर, सॉकेट बंद किया, उसके बाद बॉक्स को बंद किया, उसके बाद रैप किया, उसके बाद रिबन बांध दिया. इट मीन्स दैट इज एनकैप्सुलेशन. जब कोई डेटा सेंडर जब भेज रहा है ना, तो इसी के हिसाब से ईच एंड एवरी लेयर क्या करता है, रैप करके दे रहा है. अब तो गया रिसीवर के पास. रिसीवर का काम क्या है? डेटा को निकालना. तो पहले क्या करेगा? वो अनरैप करना शुरू करेगा. अनरैप कैसे होगा? ये डेटा चला गया डेटा लिंक के पास. डेटा लिंक लेयर क्या किया? उसका ट्रेलर और उसका हेडर उसको हटा दिया, भेज दिया नेटवर्क लेयर के पास. नेटवर्क लेयर जाके उसका जो हेडर है उसको निकाल दिया, भेज दिया ट्रांसपोर्ट लेयर के पास. ट्रांसपोर्ट लेयर क्या किया? उसका हेडर को हटा दिया, भेज दिया सेशन लेयर के पास. सेशन लेयर क्या किया? हटा दिया, भेज दिया प्रेजेंटेशन लेयर के पास. प्रेजेंटेशन लेयर के क्या किया? उसको हटा के एप्लीकेशन लेयर में भेज दिया. एप्लीकेशन में जाके हमारा मैसेज मिल रहा है जो कि हम ये मॉनिटर में देख सकते हैं. सो जब सेंडर डेटा भेजता है उस प्रोसेस को कहता है एनकैप्सुलेशन और डेटा एनकैप्सुलेशन. और जो जिसके पास जा रहा है उसको कहते हैं डेटा डिकैप्सुलेशन और डी एनकैप्सुलेशन. ओके, 1 minute जस्ट. Okay, so first tell me, is it clear or not? Yes sir. Sir একটা কোশ্চেন ছিল যেটা বলো. এই এনক্যাপসুলেশন পদ্ধতির জন্য স্যার কি কোনো অ্যাডভান্টেজ আছে? হ্যাঁ, অ্যাডভান্টেজ তো, মেন অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ডেটা প্রোটেকশন. তুমি একটা ডেটা যখন আপার লেয়ার টু লোয়ার লেয়ার তুমি সেন্ড করছো, দেন দ্য প্রোটেকশন ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট. কোনো লেয়ারে গিয়ে ডেটা চোখ হতে পারবে না, কারণ প্রত্যেকটা লেয়ার তার হেডার অ্যাড করে র‍্যাপ করে দিচ্ছে ডেটাটাকে. দ্যাট ইজ হোয়াই ইট ইজ কল্ড এনক্যাপসুলেশন. ইউ আর এনক্যাপসুলেটিং দ্য ডেটা. ওকে স্যার. হ্যাঁ, এই রোল নাম্বার 1 এসছে আজকে? স্যার এসছে. আচ্ছা আচ্ছা, এইবার আছো, বাহ, গুড. এইবার सेम थिंग इज हैपनिंग. अगर राइट साइड का पीसी, अगर कोई भी डेटा लेफ्ट साइड के पीसी में भेजेंगे, मतलब यहां से इस तरफ, तो सेम प्रोसेस विल बी अप्लाइड. दैट इज यहां पर एनकैप्सुलेशन होगा, यहां पर डिकैप्सुलेशन होगा. So that is the process. If you are asked what is encapsulation process, data encapsulation,
that the important that each and every the process by which each and every layer puts the header in front of the data in its own layer. Within bracket लिख देना and trailer also, because trailer हर लेयर जुड़ते नहीं, सिर्फ डेटा लिंक लेयर ही जुड़ते हैं. सो दैट इज वाई ब्रैकेट में हेडर सब लेयर ऐड करता है, लेकिन ट्रेलर एक ही करता है जो जिस डेटा लिंक लेयर में. सो जस्ट मेंशन, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एनकैप्सुलेशन. और जिसके पास गया वो क्या किया, अनरैप स्टार्ट कर दिया. तो ये अनरैपिंग प्रोसेस को कहते हैं डिकैप्सुलेशन, डेटा डिकैप्सुलेशन, और समटाइम्स इट इज नोन एज डेटा डी एनकैप्सुलेशन. Is it clear or not? Yes, sir. अजीत, साजिद, क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Okay. देखो ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है. कैसा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है? यहाँ पर एक्स है सेंडर, वाई है रिसीवर, इसके बीच में ए बी ऐसे करके एक पाथ है, रूट है. तो डेटा को यहाँ से निकल के यहाँ से जाके यहाँ से होके यहाँ जाना है. तो क्या होगा, प्रेजेंटेशन लेयर में चला गया. देखो इसका फिजिकल लेयर ए मतलब दिस, इसके अंदर चला गया. यहाँ से डेटा निकल के इसका जो लैंड पोर्ट है, इसका लैंड पोर्ट मतलब बी का लैंड पोर्ट में चला गया. बी का लैंड पोर्ट में जाके वहां से निकल के सी का लैंड पोर्ट में गया. सी का लैंड पोर्ट से लेकर उसके अनदर लैंड पोर्ट से क्या किया, वो चला गया वाई के पास. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेटा फ्लो थ्रू ए नेटवर्क, जनरल प्रोसेस. बिकॉज अगर राउटर देखो या तुम स्विच देखो, हर एक का तो फिजिकल पॉइंट है, हर एक का फिजिकल पॉइंट है. तो फिजिकल पॉइंट में ये इसको आना ही पड़ेगा. उसके बाद फिजिकल पॉइंट से ही फिजिकल जो पोर्ट है उस पोर्ट के थ्रू से ही डेटा को निकलना है. सो दैट इज वाई फिजिकल पोर्ट सबके पास होगा. दैट इज द प्रोसेस. So that is why written that data flow in a network focuses on the layers 1, 2, 3 of the WSI model. And this is after being transmitted by a sending host and before arriving at the receiving host. कैसे होता है? बट इन जनरल हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई डेटा एक से भेज दिया वाई के पास, सीधा चला गया इसके पास ये, लेकिन इसके बीच में ऐसा होता है, ऐसे करके डेटा ट्रांसमिशन होता है. ओके, एम आई क्लियर? Yes, sir. ওকে, আর আমি একটা পিকচার এখানে দেখাচ্ছি, আমার এখানে করা আছে. That is the data encapsulation and decapsulation. It is more clear, I think. Just देखो, यहाँ से डेटा सेंडर ये ट्रांसमिट करता है, ये रिसीवर है. यहाँ पर डेटा चला है, हेडर फाइल ऐड किया. जितना हेडर फाइल जुड़ रहा है ना, देखो डेटा साइज उतना ही बड़ा हो जा रहा है. इसको कहते हैं पैकेट और डेटाग्राम. ये दो नाम क्यों यूज हुआ है, पैकेट और डेटाग्राम, ये बाद में हम आएंगे. बट ओएसआई मॉडल में थर्ड लेयर में पैकेट, सेकेंड लेयर में फ्रेम और फोर्थ लेयर में कहते हैं सेगमेंट. फ्रेम यहाँ से नॉर्मल बीट यहाँ से निकल के सीधा चला गया इसके पास, ये अनरैप होकर जा रहा है, इसको कहते हैं डेटा, ओरिजिनल डेटा इसके पास चला गया. मतलब एनकैप्सुलेशन हुआ, यहाँ पर डिकैप्सुलेशन हुआ. अगर ये इसको भेजेंगे तो यहाँ पर इनकैप्सुलेशन होगा, यहाँ पर डिकैप्सुलेशन होगा. जस्ट देखो कैसे होता है ये स्टेप, हम अपलोड कर देंगे नोट, नो प्रॉब्लम. एनकैप्सुलेशन रैप्स द डेटा with the necessary protocol information before network transit. So therefore, as the data moves down through the layers of the OSI model, each OSI layer adds header. देखो ब्रैकेट के अंदर and also a trailer at layer 2. ये मेंशन कर दिया to the data before passing it down to a lower layer. So the headers and trailers contain the control information for the network devices and receiver to ensure the proper delivery. এই যে আমাকে रोहित प्रश्नটা করলো, जो रोहित हमको पूछे थे, क्या पूछे थे कि सर इसमें क्या फायदा है हम लोगों को, ये जो एनकैप्सुलेशन कर रहा है तो क्या फायदा है. कि जस्ट रीड दिस लाइन, द हेडर एंड ट्रेलर. अगर हेडर ट्रेलर यहाँ पर ऐड हो रहा है, इसके मतलब हम तो इसके एनकैप्सुलेशन कर रहा है उस डेटा में, तो उसका फायदा क्या है. देखो द हेडर trailer contains the control information
for the network and just this line. Information for the network devices and receiver to ensure proper delivery of the data and to ensure that the receiver can properly interpret the data. So इसमें दो फायदा है. That is, in a short, you can say that is a data protection or data security. But actually, if you postmortem this word data, what is the meaning of data security, or what is what do you mean by data security? It means that it control the information. दो काम यहाँ पर हो रहा है. क्या? एक है information for the network devices and receiver to ensure the proper delivery of the data. जो डेटा मैंने भेज दिया वो सही हिसाब से तुम्हारे पास चला गया. That is first. Number 2, जिसके पास गया वो सही तरह से उसको इंटरप्रेट किया. ये दो काम डेटा एनकैप्सुलेशन में होता है. ये दो काम होता है. मतलब मैंने बोला कि भाई तुम्हारा आज बर्थडे है, मैंने तुमको एक रेड कलर का पेन गिफ्ट कर रहा हूं, कि ब्लू कलर का पेन गिफ्ट कर रहा हूं. मतलब तुमको पता है कि रेड या जो सर ने बोला उस कलर का पेन हमको मिल रहा है. अगर तुम अनरैप करने के बाद तुम देखा कि एक येलो कलर का पेन है, इसके मतलब क्या है? इसके मतलब जो होता है, इसके मतलब तुम्हारे पास सही गिफ्ट नहीं गया, तुम्हारे पास सही गिफ्ट नहीं गया. ओके, सो दैट इज व्हाई इसके अगर तुम दो चीज यहां पर देखना है कि भाई मैंने जो डिलीवर किया तुमको सही तरह से मिला, तुमको गिफ्ट मिला, तुम बोला हाँ सर गिफ्ट मिला. कौन सा गिफ्ट मिला? वो रेड कलर का पेन मिला. तुम अनरैप करके देख लिया, हाँ सर रेड कलर का पेन मिल गया. सो दो, एक तुम्हारे पास भेजने का एक कंफर्मेशन, दूसरा बात है जो एक्चुअली मैं भेजे थे तुमको वो तुमको वही हिसाब से मिला कि नहीं. যেটা আমি তোমায় পাঠিয়েছি, প্রথম আমার কথা হচ্ছে তুমি পেয়েছো কিনা. যদি পেয়ে থাকো তাহলে যেটা আমি বলেছি সেটা পেয়েছো কিনা. তো এই দুটো জিনিস আমাদের ইম্পর্টেন্ট ডেটা এনক্যাপসুলেশনে. এম আই ক্লিয়ার অর নট? यस सर. সবাই বুঝেছো কি? Yes, sir. ওকে. So this is the network must perform the following 5 conversion steps to encapsulate data. ये जनरल स्टेप्स है. जब एनकैप्सुलेशन प्रोसेस एनकैप्सुलेशन होगा तो ये जनरल स्टेप्स है जो क्या वहां पर होगा. पहला बिल्ड द डेटा, डेटा को बिल्ड करना है, मतलब जो डेटा हम भेजेंगे उसको प्रिपेयर करना है, रेडी करना है. सेकेंड, पैकेज द डेटा फॉर एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट, डेटा को पैकेज किया, दो काम हो गया. सेकेंड, थर्ड में क्या हुआ? एपिड के मतलब ऐड द नेटवर्क एड्रेस टू द हेडर. उसका जो हेडर फाइल होगा वहां पर बोल देना चाहिए कि भाई कहाँ जाना है. जैसे कि तुम एक किसी को मेल भेज रहे हो, कि कोई किसी को चिट्ठी लिख रहे हो, तो उसका तो मेल एड्रेस चाहिए, नहीं तो वो कहाँ जाएगा? अगर तुम्हारा मेलिंग एड्रेस नहीं होगा तो वो ईमेल तुम किसको भेजेंगे? किसको भेजना है तुमको कैसे पता चलेगा? मेल सर्वर को नहीं पता चलेगा. तो इसमें जब डेटा तुमको भेजना है तो भाई क्या होगा? पहले डेटा को बिल्ड करो, प्रिपेयर करो डेटा को, कौन सा डेटा तुमको भेजना है. सेकेंड, उस डेटा को पैकेज द डेटा फॉर एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट, उसको पैक करके रेडी करो, मतलब वो रैप करो. थर्ड क्या हुआ? थर्ड, उसके आगे डेटा को एकदम पहले फर्स्ट लोकेशन में बिठा दो, कहां पर जाना है उसका एड्रेस बता दो, नेटवर्क एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस उसका हेडर में बिठा दो. फोर्थ में क्या? एड द लोकल एड्रेस टू द डेटा लिंक हेडर, मतलब कौन सा भेज रहा है, कौन भेज रहा है. डेटा लिंक लेयर हेडर में कौन सा भेजेंगे? मैक एड्रेस. मेरा मैक एड्रेस है ये, मेरे को भेजना है, दूसरी तरफ का जो आईपी है उस आईपी को भेजना है. लास्ट क्या है? कन्वर्ट टू बीट्स फॉर ट्रांसमिशन. जो टोटल डेटा मिल गया, जब लैन कार्ड से वो बाहर जाएगा, केबल के थ्रू से बाहर जाएगा, तो वो बीट में कन्वर्ट होके जाएगा. ये कन्वर्शन चाहिए. तो ये पांचों स्टेप्स होगा. पहले डेटा बिल्ड करना, उसके बाद एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट के लिए उसको प्रिपेयर करना, पैकेजिंग करना, उसके बाद उसको हेडर में एक आईपी बिठा दो, और जो भेज रहा है उसका जो लोकल एड्रेस है, मतलब जो मैक एड्रेस है, उसको बिठा दो. बिठा देने के बाद डेटा एंटायर जो डेटा मिल गया उसको कन्वर्ट कर दो, टोटल डेटा को कन्वर्ट कर दो. किस में कन्वर्ट कर दो? वो जो लॉजिकल बीट्स होगा उस बीट में कन्वर्ट कर दो. कंप्लीट योर स्टेप. दिस इज जनरल. This is what I am saying, that is, it is general encapsulation process.
एम आई क्लियर? अजीत हो गया, साजिद का कोई प्रॉब्लम है? यस सर। और बाकी नहीं सर। रोल नंबर 1 All 2 clear, 3 sir. কারুর কোনো সমস্যা আছে? ना सर। ओके, दिस इज द डेटा डीकैप्सुलेशन प्रोसेस। देख लो, थोड़ा छोटा करके दे रहा हूं। हाँ, देख लो, डेटा डीकैप्सुलेशन जब हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हेडर सब मैक, ये जो हेडर है मैक हेडर है जिसके अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस है, सोर्स एड्रेस है, ये सब अनरैप होके जा रहा है, इसके बाद इसके पास गया। तो क्या हो गया, द रिवर्स प्रोसेस से इनकैप्सुलेशन और de-encapsulation occurs when the data is received on the destination computer. As the data moves up from the lower layer to the upper layer, each layer unpacks or unwraps the corresponding header and uses the information contained in the header to deliver the packet to the exact network application waiting for the data. That is the decapsulation process. Another important thing which I want to say, ये जो बोल रहा है ना जी, नेटवर्क लेयर में उसका नाम है पैकेट, डेटा लिंक लेयर में उसका नाम है फ्रेम। तो एक्चुअली इसको क्या कहा जाता है, जैसे कि तुम्हारा घर में कुछ नाम होता है, किसी भी घर, किसी का, मेरा भी एक घर का नाम है, एक फ्रेंड के पास में एक नाम है, वो लोग उसी नाम से हमको पुकारता है। घर का लोग जब यूनिवर्सिटी में है तो तब तुम लोग बोलते हो अनिंदो सर, या वहां पर अनिंदो कह के पुकारता है। तो हर एक का तो ऐसा ही होता है, तो उसको जनरली कहते हैं क्या, निक नेम, जिससे पुकारता है घर का या तुम्हारा फ्रेंड सर्कल में जो है, या लोकालिटी में जिस नाम से तुम पॉपुलर हो, दैट इज कॉल्ड निक नेम। तो नाम क्या है, निक नेम। उसी की तरह हर एक लेयर का एक निक नेम होता है। वो निक नेम को क्या कहते हैं, हम लोग बोलते हैं निक नेम, यहाँ पर कहता है पीडीयू, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। আমরা বলি এখানে কি, যে তোমার বাড়ির নামটা কি, এখানে বাড়ির নাম ওইভাবে বলবো না, নিক নেম, ডাক নাম, আমরা যেটাকে বাংলায় বলি ডাক নাম, ডাক নামটা কি, এখানে ডাক নাম বলবো না, এখানে বলবো পিডিইউ, প্रोटोकॉल डेटा यूनिट। So each and every layer has its own PDU name, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट नेम। जैसे कि डेटा लिंक लेयर का PDU जो नेम है वो है फ्रेम, डेटा नेटवर्क लेयर का PDU नेम है पैकेट, ट्रांसपोर्ट लेयर का PDU नेम है तुम्हारा सेगमेंट। जैसे कि देख लो, actually what is PDU, if you are asked what is PDU, a PDU represents the bits that include the headers and trailer for each layer as well as the encapsulated data. PDU is a generic term used to describe the end product of the protocol. ये भाई जब मेरे पास आया, मैंने जब पूरा किया, रैप करके पूरा किया, तो उसको कौन सा नाम उसको पुकारेंगे, so that is the nickname, that is the generic term that is used in network layers, transport layer, data link layer, like that. जैसे कि देख लो, फिजिकल लेयर में कोई नाम नहीं है क्योंकि वहां पर रॉ बिट्स मिलता है। डेटा लिंक लेयर कहते हैं फ्रेम, नेटवर्क लेयर कहता है पैकेट, ट्रांसपोर्ट लेयर कहता है सेगमेंट, और सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, ये तीनों लेयर में कुछ जगह तुमको मिलेगा कि मैसेज कह के पुकारता है, कुछ जगह में तुमको मिलेगा डेटा के पुकारता है। सो दोनों नाम ही उसके लिए सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो है। सो दैट इज द पीडीयू नेम। ओके, एम आई क्लियर और नॉट? यस सर। क्लियर, अच्छा ओके। তো 2 মিনিট বোধহয় আছে নাকি, তাহলে তো আমি এটা কমপ্লিট করতে পারবো না। দেখছি ডট মডেল, আমি ডট মডেলটা একটু ছোট্ট করে বলে দিচ্ছি। বেসিক্যালি ওয়েসাই লেয়ারের আগে, বিফোর দ্য ওয়েসাই লেয়ার, actually American Defense Department, they designed a special type of layer architecture. It is prior to the वेसाई लेयर। वेसाई लेयर जब था, वेसाई लेयर के पहले ये मार्केट में आया। किसने बनाया? यूनियन, तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट ने एक लेयर आर्किटेक्चर बनाया था। तो एक्चुअली
दैट इज इंपॉर्टेंट। ये जो ओएसआई मॉडल है ना, ये ওএসআই মডেল বেসিক্যালি থিওরিটিক্যাল মডেল। এটা থিওরিটিক্যাল মডেল, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল মডেল না। কিন্তু আশ্চর্যজনক ঘটনা হচ্ছে আমাদের এই প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কিন্তু ওএসআই মডেলের গুরুত্ব সব থেকে বেশি। তোমরা যখন কাজ করতে যাবে, तुम लोग जब जॉब के लिए इंटरव्यू या जब काम करने के लिए जाओगे ना, तुम तब देखोगे कि वहाँ पर टीसीपी/आईपी मॉडल का कोई उतना इम्पोर्टेंस नहीं है कि जितना है ओएसआई मॉडल का। बट अमेजिंग थिंग इज दैट ओएसआई मॉडल इज बेसिकली ए थियोरिटिकल मॉडल, बट प्रैक्टिकल मॉडल जिसके ऊपर ये अप्लाई होता है, ये मॉडल है डॉट मॉडल और टीसीपी/आईपी मॉडल। मतलब ये एक पिक्यूलियर कन्फ्यूजन है कि जब प्रैक्टिकल फील्ड में हम काम करने के लिए जाएंगे तो वहां पर ओएसआई मॉडल का पूरा चर्चा होता है, टीसीपी/आईपी का नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल मॉडल टीसीपी/आईपी मॉडल ही है, ओएसआई मॉडल है एक थियोरिटिकल मॉडल। बट जितना भी ये नेटवर्क डिवाइसेस बोलो, प्रोटोकॉल्स बोलो, जितना भी डिजाइन हुआ ना, सब कुछ डिजाइन हुआ ये थियोरिटिकल मॉडल ओएसआई के ऊपर डिपेंड करके, डॉट मॉडल के ऊपर डिपेंड करके नहीं। इसका एक वजह है। क्या वजह है? बेसिकली टीसीपी/आईपी OSI is a general model that was provided by ISO, बट ये जो टीसीपी/आईपी है नोवेल का एक खुद का मॉडल है, IPX/XPX मॉडल। इसका ये जो माइक्रोसॉफ्ट, ये अदर्स जो है ना, रेड हैट, ये सब लोग टीसीपी/आईपी को फॉलो करता है। मतलब यहाँ पर वेरिएशन है, लेकिन ओएसआई है यूनिवर्सल। सो इसीलिए बेसिकली जितना भी ये सब प्रोटोकॉल या हमारा ये जो डिवाइसेस वगैरह डिजाइन होता है ना, सब कुछ ओएसआई के ऊपर हिसाब से ही होता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है मैंने एक डिवाइस बनाया टीसीपी/आई के ऊपर डिपेंड करके, उसको बेस करके, हो सकता है नोवेल नेटवर्क में नहीं चलेगा। ऐसा हो सकता है मैंने जो मॉडल बनाया वो नोवेल नेटवर्क में चलेगा, वो माइक्रोसॉफ्ट में नेटवर्क या टीसीपी/आईपी मॉडल में नहीं चलेगा। लेकिन मैंने अगर ओएसआई को बीच में रख के, सामने खड़ा करके, उसके हिसाब से प्रोटोकॉल या तुम्हारा डिवाइस बनाएंगे तो वो हर एक मॉडल में काम करेगा। सो दैट इज द रीजन। इसीलिए दो इट इज अ थियोरिटिकल मॉडल, but in practical it has a very importance with respect to the TCP/IP model. So the TCP/IP model is a practical model. ব্যাপারটা বোঝাতে পারলাম? Am I clear or not? Yes sir. Okay. So difference is that আমাদের application, if you got the TCP/IP model, just you see what is the difference. Here we have 7 layers, but in TCP/IP model फिजिकल प्लस डेटा लिंक लेके एक लेयर बनाया, नेटवर्क एक्सेस। यहाँ पर नेटवर्क लेयर ही है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ही है। लेकिन समटाइम्स दिस ट्रांसपोर्ट लेयर यू कैन सी इट इज कॉल्ड होस्ट टू होस्ट नेटवर्क लेयर, होस्ट टू होस्ट लेयर कहता है। और ये जो तीनों लेयर्स है, इन तीनों लेयर लेके एप्लीकेशन लेयर बनता है। बट रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर जो 7 लेयर है ना, इस 7 लेयर का ईच एंड इंडिविजुअल लेयर का जो काम है, ये 4 लेयर में इसके ये सब काम एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर लेयर आर्किटेक्चर कम हो गया, 4 लेयर हो गया। तो देखोगे यहाँ पर फिजिकल और डेटा लिंक लेयर मिला के जो काम होगा ये नेटवर्क एक्सेस में, वो सब काम ये करेगा। मतलब यहाँ पर नेटवर्क फिजिकल लेयर में जो काम मैंने कल बताया और डेटा लिंक लेयर में जो बताया, जितना भी काम है सब काम नेटवर्क एक्सेस लेयर में होगा। अगर तुम्हारा ओएसआई मॉडल, ओएसआई लेयर एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंख बंद करके इसका जो काम है टोटल करके नेटवर्क, अगर तुमको कहा गया कि भाई नेटवर्क टीसीपी/आईपी मॉडल में नेटवर्क एक्सेस लेयर का क्या काम है, नेटवर्क टीसीपी/आईपी मॉडल नेटवर्क एक्सेस लेयर की कहा जाए, তুমি বলো তো। প্লেন এন্ড সিম্পল, ফিজিক্যাল লেয়ার যা যা কাজ করে, ডেটা লিংক লেয়ার যা যা করে, সব কটা কাজ ওখানে লিখে দাও। Just write all the functions executed by the data link layer and physical layer in nutshell in a network access layer. That is complete. So that is why मैंने बताया कि भाई ओएसआई मॉडल को ठीक तरह से पढ़ो। ये नोट हम अपलोड कर देंगे, आज ही कर देंगे, नो प्रॉब्लम। तो तुमको ये इसको पढ़ना ठीक तरह से, यहाँ पर इलेबोरेटली सब लिखा हुआ है।
नो प्रॉब्लम। सो दिस इज द डॉट मॉडल। बेसिकली इसका नाम डॉट क्यों, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका इसको डिजाइन किया है, लेकिन इसका और भी एक नाम है टीसीपी/आईपी मॉडल। इसीलिए अगर तुमको कहा गया कोई इंटरव्यू में तुम लोगों को बुद्धू बुद्धू बनाने के लिए कि भाई वो टीसीपी/आईपी मॉडल और डॉट मॉडल का डिफरेंस क्या बताओ, तो तुम लोग सोच में पड़ जाओगे, अरे क्या है, टीसीपी/आईपी भी पढ़ लिया लेकिन डॉट तो नहीं पढ़। अरे जो डॉट मॉडल है वही टीसीपी/आईपी मॉडल है, एक ही। एम आई क्लियर और नॉट? यस सर। ওকে, এই জন্য দেখো লাস্ট লাইন, দিস লাস্ট লাইন, the dot model popularly known as TCP/IP model. Am I clear? अजीत और ये सजीत कोई प्रॉब्लम है? Absolutely, sir. एकदम No, sir. क्लियर। ओके, तो आज के लिए डॉट मॉडल कंप्लीट हो गया। एक मिनट, पहले स्टॉप प्रेजेंटेशन, उसके बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग।